So now see, there is a condition called acute gastroenteritis. There is a condition called acute gastro or acute infective gastroenteritis. यहाँ पे it is written. Anyways, before starting this point, let us define what is diarrhea. सबसे पहले diarrhea क्या है? What is diarrhea? Diarrhea is defined as increased passage of loose or watery stools, not solid stools. Increased passage of loose or watery stools relative to the person's usual bowel habit. Regularly जो भी patient stools pass करता है, beyond that if patient passes stools that is usually watery or loose stools, that condition is called diarrhea. And most of the diarrhea patients are mainly characterized by anorexia, nausea, vomiting, abdominal cramps, and bloating. So, the increased passage of loose stools than the average, than the normal stools is considered as diarrhea, and it will be mainly characterized or accompanied by anorexia. What is anorexia? What is anorexia? Loss of appetite, inability to take, or loss of hunger. Patient will not be willing to eat something. Okay, अब डायरिया केसेस में ये कॉमन है, बहुत कॉमन रहेगा. अनरेक्सिया रहेगा, नासिया रहेगा, पेशेंट फीलिंग लाइक पेशेंट इज वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी, उसको नासिया बोलते. एंड नासिया, if nausea increases, patient will have vomiting. And most of the time abdominal cramps are very commonly seen. Bowel sounds बोलते हैं, abdominal cramps. Patient will be having bowel sounds because gastric motility got increased, peristaltic movement got increased, and lot of fecal matter is getting excreted, defecated out of the gastric tissues, and bloating. So this is the definition of diarrhea. And one thing you have to understand, diarrhea diarrhea is very 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 common with infection. सब लोग याद रख लो, डायरिया इज वेरी वेरी कॉमन विथ इन्फेक्शन. अब देखो, इफ ए पेशेंट गेट्स डायरिया, initially being a clinical pharmacist and being a doctor, what we have to understand, we should suspect that patient is having infection. Okay, and mostly diarrhea is usually, maximum number of diarrhea cases are just caused due to acute infective gastroenteritis. Diarrhea is mainly caused due to infective gastroenteritis. And we also have other causes. We have drug related causes. Some drugs will cause diarrhea. And sometimes patient will be having diarrhea due to anxiety. Sometimes patient will have diarrhea due to fungal infections, due to viral infections. Okay, and sometimes diarrhea is caused due to overuse of laxatives. Yes, sub causes we will see in detail one by one. So among all these causes, acute infective gastritis is very very common. Okay, this point is very important, you have to remember. So wherever patient is getting diarrhea, what we have to suspect? You have to suspect that patient may be having infective gastroenteritis. And diarrhea means, treatment of diarrhea is nothing but treatment of acute infective gastroenteritis, because most of the diarrheal cases are caused due to acute infective gastroenteritis. Clear? आप देखो, अब next very important point what we have to suspect or what we have to understand is, diarrhea is very very common in children, and the incidence rate of diarrhea in adult is very low. Adults में diarrhea बहुत rare दिखता है. Okay, and see, diarrhea is very very common in children, it is very rarely seen in adults में नहीं आता करके नहीं, adults में भी आता. And in children, why it is very common in children is because acute infective gastroenteritis is very very common in children. Because of that reason, children are having high risk of causing diarrhea. Okay, this is very important point we have to remember. अब देखो, adults के अंदर भी diarrhea आने के chances है, but adults में acute infective gastroenteritis नहीं, possibility is very rare. Then in adults, what is the main cause for diarrhea is, in adults mainly diarrhea is caused due to food poisoning. Mainly in adults diarrhea is caused due to food poisoning. And sometimes there is a very common term called traveler's diarrhea. Have you heard about traveler's diarrhea? So traveler's diarrhea is very common term which is mainly suggested for adults. Adults will be traveling from one place to another place, drinking water from one area to other area. They will not be frequently washing hands, they will be eating outside, inside, जो भी है.
और बसे मसे चीज़ें खाते रहते, आज का कल का रोटी मोटी जो मिलेगी वो खाते रहेगा। फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश फूड्स आर नॉट अवेलेबल। अब घर में क्या करते हैं अपन, घर में वी विल बी ईटिंग दी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स, ओके। तो घर में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इज़ वेरी लो। बट वेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बाहर जो मिलेगा वही खाना ना। बाहर इन मोस्ट ऑफ द होटल्स एंड इन मोस्ट ऑफ द रोड साइड स्ट्रीट फूड्स, द सेलर्स विल नॉट बी मेंटेनिंग हाइजीन। वो हवा में जो भी डस्ट उड़ के आ रहा आके उसके ऊपर गिर जाएगा, फिर वो जो ही विल नॉट बी मेंटेनिंग हाइजीन, ही विल नॉट वॉश हैंड्स प्रॉपरली, ही विल नॉट वॉश द यूटेंसिल्स प्रॉपरली। एक प्लेट में 10-10 लोग खाते रहते, सेम वाटर से सेम प्लेट यूज ही विल बी वॉशिंग। So patient will be having more risk of getting infection, and infection which is caused in the traveling patients is, if they get diarrhea, that is called traveling diarrhea, simple. So adults में adults, adults में क्या होने के chances है? In adults, food poisoning is one important cause and traveling diarrhea is another cause. Through these two causes, adults will be getting diarrhea. But in children acute gastroenteritis is very common cause for diarrhea, and in children more commonly seen is, among both the populations, children and adult, children are having high risk of getting diarrhea. Clear this point, everybody? This is the very basic we have to understand. Now, just now I told diarrhea is not only caused due to infection, or diarrhea is not only caused due to drugs. Sometimes diarrhea is also associated with some anatomical conditions and some autoimmune conditions. In that, yesterday we have discussed about a condition called irritable bowel syndrome. कल देखे थे, irritable bowel syndrome is associated with constipation and diarrhea. Both ये condition में constipation हो सकता है और diarrhea भी हो सकता है. And there is another condition called inflammatory bowel disease. In this also patient will be having diarrhea. And colorectal cancer is another condition, and malabsorption syndromes. All these conditions are associated with diarrhea. Okay, so ये अगर किसी भी patient में ये malabsorption syndrome, colorectal cancer, inflammatory bowel disease, GERD is totally different. Okay, GERD is totally different. That is gastrointestinal reflex. वो from the esophagus and pharynx, the gastric contents will be coming in opposite direction. That is different condition, and these are irritable bowel syndrome and inflammatory bowel syndrome. अगर large intestine में irritation हुआ तो what happens? Patient will be having irritation and more peristaltic movement increases, and patient will have diarrhea. Okay, so in large intestines, if any patient is having irritation, inflammation or infection or any dysfunction, patient will first develop diarrhea. ये चीज़ याद रख लो. Okay, so now let us go with the causes. Diarrhea होने के लिए causes क्या हो सकते हैं? डायरिया होने के लिए causes क्या हो सकते हैं? कैन एनीवन टेल मी सम causes for डायरिया? किसी को डायरिया हुआ कभी भी? एनीबडी? किसी को डायरिया हुआ? मेरे को तो बहुत बार हुआ. When I was small, I used to get frequent diarrheas. स्कूल को जाते थे, डायरिया आ जाता, डर लगता था, बाथरूम बराबर नहीं रहते थे, बहुत तकलीफ होती थी मेरे को तो. I used to face lot of problems with diarrhea. But gradually after 7th class, 8th class and 9th class, then everything got settled. But in small age वो, because in just now we discussed, no, small child age में diarrhea is very common, because अपने को पता नहीं रहता, एक एक बार हाथ नहीं धोते बराबर, we will be drinking unusual water, tap water. और वो ज़माने में जब मैं छोटा था तो फिल्टर वाटर वो कुछ भी नहीं था, जो पानी मिलता था वो पी लेते थे. सो रिस्क ज़्यादा रहता था वो टाइम पे. एंड आई वॉज इन्फेक्टेड विथ कलरा ट्वाइस, और आई यूज टू फ्रीक्वेंटली आई यूज टू गेट इन्फेक्टेड विथ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन. छोटेपन में इवन यू माइट हैव गॉट ऑल दिस इन्फेक्शंस. एनीवेज, अब देखो, for causes of diarrhea we have certain causes. Just now as we discussed, infection is very important cause for diarrhea. डायरिया में अगर 10 चिल्ड्रन को डायरिया आया तो among these 10 populations, 8 to 9 of these patients will have infection, and remaining 1% will have either drug or any other cause. So infection is very important cause for diarrhea. ये चीज़ याद रख लेना. So infection means what is infection? What is infection? Contamination of the body fluids with bacteria, virus, fungi or anything, that is called infection, and which may be associated with diarrhea, vomiting, fever, inflammation, gastritis, injuries, pus formation, sepsis, ये सब आते. और TB, pneumonia, all these are infectious conditions. And infection is nothing but contamination of body fluids or body with the
बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और ऑल इज कॉल्ड इन्फेक्शन. अब देखो, इन्फेक्शन इज वन कॉमन कॉज. नो, इन इन्फेक्शन वी हैव सर्टेन बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरस. अब देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. कैन एनीवन टेल मी सम बैक्टीरिया that may cause diarrhea? Can anyone tell me bacteria that may cause diarrhea? Exactly, very good. E. coli. See, E. coli bacteria is very commonly seen in gastrointestinal tract. Rectal area में yesterday we discussed what is colon and rectum. Okay, anal rectal region में E. coli concentration is very high. In normal adults also, in normal populations also, E. coli ज़्यादा रहने के chances है. And this E. coli, if patient is not maintaining proper hygiene, the E. coli infection may try to enter into the vaginal cavities in females particularly because of very short urethra. These E. coli can also cause UTI. So, if anybody, if especially in females, if females are having gastrointestinal infections, they will have more risk of developing UTI. Gastrointestinal infection तो automatic कम हो जाएगा, but if infection attacks on the urinary tract, it is very very difficult to treat. So compulsory antibacterial agents, antibacterial therapy is to be started. Okay, so E. coli is very important cause, very important. It is an important bacteria that causes diarrhea. Along with E. coli, see, actually in E. coli we have different types of E. coli. We have different types of E. coli. E. coli में भी बहुत सारे different types है. Some E. coli bacteria will produce some toxins in the GI tract. Some E. coli bacteria will produce some toxins, and those E. coli bacteria which produces toxins are called entero enterotoxigenic enterotoxigenic toxigenic E. coli bacteria. E. coli. See, in E. coli we have different types. In that, the first one is the E. coli bacteria which produces toxin. So those E. coli bacteria which produces toxins are called enterotoxigenic bacteria or enterotoxigenic E. coli. Toxigenic means the bacteria which produces toxin, right? So when enterotoxigenic E. coli infects the gastrointestinal tract, it will produce toxins, and these toxins will disturb in absorption of fluids. It disturbs in absorption of gastric contents, and through that what happens, patient will develop diarrhea. Simple. टॉक्सिन अगर अपने अपने जीआई ट्रैक के अंदर टॉक्सिन आ गया तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन बराबर से नहीं होगा. टिश्यूज कांट अब्जॉर्ब द गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड थ्रू दैट पेशेंट विल डेवलप डायरिया. दिस इज वन टाइप ऑफ ई. coli बैक्टीरिया. आर यू ऑल फॉलोइंग मी? आर यू ऑल फॉलोइंग? यस. अब देखो, सेकेंड टाइप ऑफ ई. coli बैक्टीरिया इज एंटीरो इन्वेजिव ई. coli बैक्टीरिया बोलते हैं. एंटीरो मीन्स गैस्ट्रिक टिश्यू. ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं. एंटीरो मीन्स गैस्ट्रिक टिश्यू, और एंटीरॉन मीन्स we can say intestines and small intestines and large intestines. Enteron bolte. Okay, enteron is gut simply. Okay, so second type of E. coli bacteria is entero-invasive E. coli. Entero-invasive means some E. coli bacteria, what they do, they will try to enter into the mucosal layer, and it will cause inflammation. They are called entero-invasive E. coli. अब देखो, इंट्रो इन्वेजिव E. coli क्या करेगा, वहाँ पे इन्वेजिव अंदर चले जाएगा एंड इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन, एंड थ्रू दैट आल्सो इट विल कॉज डिसफंक्शन इन अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन fluids and gastric contents, and it will cause diarrhea. This is second type. These are the different mechanisms. Some bacteria will be having these mechanisms. Especially these all mechanisms are studied particularly for E. coli. That's why I am explaining about E. coli. दूसरे बैक्टीरिया भी ऐसा कर सकता है. Okay, so one type of E. coli bacteria is toxicogenic, and second one is entero-invasive, and third one is there is another E. coli bacteria which is called enterohemorrhagic. Hemorrhagic means this E. coli bacteria, it will cause hemorrhage from the gastrointestinal tract, and through that what happens, it will disturb the absorption. Hemorrhage cause kar raha means what it is doing, it is damaging the mucosal layer, right? So through that also it will cause diarrhea. Okay, and yes, so these are different types of what we can say E. coli bacteria. So all these mechanism, एक toxin synthesis करेगा, एक invasion करेगा, एक hemorrhage करेगा. So through all this what happens, E. coli bacteria will cause diarrhea.
So that is about E. coli. अब देखो, नेक्स्ट बैक्टीरिया इज वी हैव सम अदर बैक्टीरिया, साल्मोनेला करके एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, शिजेल्ला करके एक बैक्टीरिया है, शिजेल्ला, एंड सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब सब लोग ध्यान से सुनो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज वन स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, यस समवन वाज टेलिंग, स्पेशलाइज्ड, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज नॉट बैक्टीरिया, ओके, दैट अबाउट पैरासाइट्स आई हैव नॉट स्टार्टेड येट, अब बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, यस यस समवन इज, क्लेप्सिला, यस क्लेप्सिला, यस क्लेप्सिला, स्टेफिलोकोकस आरियस, स्ट्रेप्टोकोकस आरियस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया करके बहुत सारे हैं, ओके, वो बहुत रेयर कॉज करता, सबसे स्पेशल बैक्टीरिया है, कोई बोलेगा, एनीबॉडी, स्पेशल, साल्मोनेला, साल्मोनेला तो अभी बोल दिए ना, साल्मोनेला, साल्मोनेला, शिजेला, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, सब लोग ध्यान से सुनो, हैव यू हर्ड अबाउट क्लोस्ट्रीडियम, क्लोज क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल करके एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल बैक्टीरिया याद रख लो सब लोग, ये इसके बाद केसेस भी डिस्कस करना है अपने को, it is simply called as C. difficile, it is simply called as C. difficile or Clostridium difficile. What is, why I am stressing on this bacteria, why I am stressing on this bacteria, you know, C. difficile bacteria, this kind of bacteria infection is very very challenging infection which is usually seen in hospital. ई कोली बैक्टीरिया मेट्रोनोजोल दे दो, सेफलोस्पोरिन दे दो, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे दो, खत्म हो जाएगा, साल्मोनेला, शिजेल्ला, ऑल फ्लोरोक्विनोलोन्स आर वेरी इफेक्टिव फॉर दिस ऑल काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, but Clostridium difficile bacteria is not easily killed because Clostridium difficile bacteria is methicillin resistant bacteria बोलते, multi drug resistant bacteria बोलते, okay, so Clostridium difficile bacteria is very very difficult to remove this infection, normal conventional antibiotics are not sufficient, that is one important point. And number two, Clostridium difficile bacteria कैसा आता मालूम है आपको, Clostridium difficile infections are caused due to overuse of antibiotics. Clostridium difficile bacterial infection कैसा आता, overuse of antibiotics, overuse of antibiotics. Are you all following me, are you all following me? सबसे important Clostridium difficile bacteria है, I have written one review paper on this Clostridium difficile, this is very important and I did one small course also, that's why I am focusing on this. क्यों इसके बारे में, because all bacteria which are causing diarrhea in 1 day 2 days 3 days में, that will be cured themselves or they can be cured by using some bacteria, some antibiotics, but if patient develops Clostridium difficile infection, it is very difficult to treat the patients. क्यों it is very difficult, because ये Clostridium difficile infection आया है एंटीबायोटिक के वजह से, Clostridium difficile infection क्यों आया, by the use of overuse of और abuse of antibiotic, एंटीबायोटिक यूज करने से आया, उसको फिर ट्रीट करने के लिए और दूसरा एंटीबायोटिक चाहिए ना, फॉर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको ट्रीटमेंट कैसा करना, दैट आल्सो आई टेल, वी हैव इन ट्रीटमेंट आई डिस्कस इन Clostridium difficile infections, याद रख लो सब लोग, देर इज अ वेरी वेरी फेमस ड्रग कॉल्ड वैंकोमाइसिन, सुने नाम, वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन के बारे में डिटेल में समझा तो आपको, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक. 5 points I will tell about this drug. You remember those 5 points. Enough. That is more than enough. Treatment में समझा दो आपको. Okay. So far what we have discussed. In causes, infection is very common. In infection, bacterial infection, E. coli, Salmonella, Shigella, and Clostridium difficile. इसके साथ साथ there are some other bacteria also. Okay. We have Staphylococcus, Streptococcus bacteria also. Most of the time, very rarely they are seen. अगर आया तो भी it will be cured themselves. Use of antibiotic is not mandatory in those infections. Anyways, अब देखो, along with bacterial infections, there are some other infections which will cause diarrhea. Virus is very very important. Viral infection is very very important. जितना भी अपने को bacterial infections है ना, likewise viral infection is also causing diarrhea. In that very very common virus एक है, there is a class of virus called rotavirus. सुने नाम आप लोग, rotavirus. Rotavirus is a category of virus. Rotavirus is a category of virus which will cause diarrhea. Very very common clinical presentation of rotavirus is diarrhea. याद रख लो,
अपने पास बहुत सारे वायरस के कैटेगरीज है. ओके, रोटावायरस, रोटावायरस category of viruses will cause diarrhea, they will cause diarrhea. And in rotavirus एक specific name है, there is a specific name from the rotavirus family which is called small round structural virus, which is also denoted as SRSV. SRSV, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चरल वायरस बोलते हैं इसको, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्ड वायरस. रोटा वायरस के अंदर एक स्पेसिफिक वायरस का नाम क्या है? SRSV. अब कभी भी आप देखो किसी भी पेशेंट में SRSV पॉजिटिव है, दैट मीन्स व्हाट यू विल सस्पेक्ट. किसी भी पेशेंट में SRSV पॉजिटिव है तो उसका मीनिंग क्या है? पेशेंट इज इन्फेक्टेड विथ रोटावायरस एंड पेशेंट विल हैव डायरिया. पेशेंट इज हैविंग डायरिया, सिंपल. SRSV है तो पेशेंट इज हैविंग डायरिया. अब देखो नेक्स्ट, अगर किसी भी पेशेंट में सी डिफिकल इन्फेक्शन है, सी डिफिकल इन्फेक्शन है, उसका मीनिंग क्या है? किसी भी पेशेंट में सी डिफिकल इन्फेक्शन है, उसका मीनिंग क्या है? पेशेंट डेवलप्ड डायरिया ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, सिंपल. अगर किसी भी पेशेंट में SRSV इन्फेक्शन है तो वायरल डायरिया है. अगर किसी भी पेशेंट में सी डिफिकल इन्फेक्शन है तो इट इज बैक्टीरियल डायरिया एंड इट इज वेरी चैलेंजिंग डायरिया एंड इट इज कॉज ड्यू टू ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. ओके, केस शीट्स के अंदर ऐसे टर्म्स आए तो याद रख लेना. वेर एवर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड आई एम फोकसिंग. और बाकी के इन्फेक्शन जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मली है. ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये वायरस हो गया, रोटा वायरस इज वेरी कॉमन. एंड नेक्स्ट देर आर सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच विल कॉज डायरिया. वी हैव प्रोटोजोल इन्फेक्शंस. प्रोटोजोल इन्फेक्शंस, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, these are little bit complicated infections. These are something complicated. अब देखो वायरल इन्फेक्शन आया तो व्हाट हैपेंस, 1 2 3 days अप टू 5 days रह के वो वापस चले जाएगा. बैक्टीरियल इन्फेक्शन आल्सो सेम, इफ इट स्टेज टिल 5 अप टू 1 week it will stay and it will go. बट इन प्रोटोजोल इन्फेक्शन इट इज नॉट लाइक दैट. इफ एनी डायरिया, अगर किसी भी पेशेंट में डायरिया कम्स और इफ इट इज कंटिन्यूड मोर देन 2 weeks, more than 2 weeks, then what we have to suspect? What we have to suspect? Patient is having protozoal infection. Bacterial infection भी हो सकता है यहाँ पे more than 2 weeks, but probability is more for protozoa. And in protozoa what we have? In protozoa what we have? There is a very important protozoa which is called, yes, amoeba, entamoeba histolytica, and there is another organism called giardia or giardia बोलते हैं, giardia, GIARDA, giardia, and there is very very important organism called क्रिप्टोस्पोरिडियम. सुने नाम क्रिप्टोस्पोरिडियम कोई? क्रिप्टोस्पोरिडियम, हैव यू हर्ड अबाउट क्रिप्टोस्पोरिडियम? सो क्रिप्टोस्पोरिडियम, जियार्डिया, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंड समटाइम्स अदर वेरी नवेडेज वी डोंट हैव प्रोटोजोल इन्फेक्शंस. ये बहुत रेयर है, बट इन प्रीवियस डेज, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस वर आल्सो वेरी कॉमन. And here what we have to, important point what we have to focus is, if patient has diarrhea more than 2 weeks, we have to suspect protozoal infection. And protozoal infections are mainly characterized by diarrhea with blood, diarrhea with blood in diarrhea, or bloody diarrhea बोलते हैं, bloody diarrhea. Okay, so this is important point we have to remember. These are some examples, or these are some organisms, infectious conditions which may lead to diarrhea. Diarrhea में क्या क्या है? Important one is rotavirus, second one is protozoa, and very important one is bacteria. In bacteria you should not forget C. difficile infection, very very important, challenging infection. आजकल आ रहा वो, इससे पहले C. difficile infection नहीं था, because C. difficile infection ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से आता. अब देखो कोई पेशेंट, वन पेशेंट इज admitted in the ICU. One patient is admitted in the ICU, and this ICU patient is been prescribed with ampicillin. He or she is prescribed with some पेंसिलिन्स, सेफलोस्पोरिन्स, बहुत सारे, और फ्लोरोक्विनोलोन्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज करें फॉर अप टू फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स. कंटिन्यूसली पेशेंट इज बीन गिवन विद सम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स. तो ये ICU पेशेंट्स में ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक की वजह से सी डिफिकल इन्फेक्शन चांसेस है नहीं है? सी डिफिकल, तो अगर ये पेशेंट में सी डिफिकल इन्फेक्शन हुआ तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर क्लिनिकल फार्मासिस्ट. अब यहाँ पे फिजिशियन कुछ नहीं कर सकता. फिजिशियन का ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक दे दिए बेचारे, तो पेशेंट को क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल आ गया. अब ये चैलेंज अपने पास आएगा. क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड आइडेंटिफाई दी विच एंटीबायोटिक इज अफेक्टिव फॉर सी डिफिकल. सी डिफिकल के लिए अपने को वी हैव मेथिसिलिन रेसिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वी हैव वांकोमाइसिन, वेरी कॉमनली यूज ड्रग एंड वेरी अफेक्टिव ड्रग.
अगर वांकोमाइसिन यूज कर रहे हैं तो अपन क्या करना, वांकोमाइसिन यूज कर रहे हैं तो क्या करना बोलो। इन लास्ट क्लास आई टोल्ड वांकोमाइसिन इज नैरो थेरेपेटिक ड्रग। वांकोमाइसिन इज नैरो थेरेपेटिक ड्रग। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपन वांकोमाइसिन देने के बाद वी हैव टू मेक श्योर दैट वांकोमाइसिन इज प्रॉपरली मेंटेनिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बराबर मेंटेन हो रहा नहीं हो रहा वो देखना। अगर वो चेक नहीं करे तो क्या होगा, वांकोमाइसिन भी काम नहीं करेगा। इफ सी डिफिकल इन्फेक्शन इज डेवलपिंग रेसिस्टेंस टू वांकोमाइसिन, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन और अग्रीवेट हो जाएगी और पेशेंट को उसके बाद कोई बचाएगा नहीं। बहुत डेंजरस कंडीशन है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग अबाउट सी डिफिकल इन्फेक्शंस। क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ यू सी, नाउ व्हाट वी विल ट्राई टू गो फर्दर विथ अदर कॉजेस। अदर कॉजेस क्या है, व्हाट मे बी द अदर कॉजेस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अदर कॉजेस? यस, नाउ अदर causes or drugs. I will be discussing about important drugs only. Important drugs which will, and the drugs which are commonly used in hospital, and the drugs which are having high probability of diarrhea. Okay, so in this we have some drugs like alpha blockers. First category, alpha blockers. Now you have to tell me why alpha blocker agents will cause diarrhea. Anybody from the class? Why alpha blockers will cause diarrhea? Anybody from the class? Anybody from the class? हाँ या ना? अल्फा ब्लॉकर डायरिया क्यों कॉज करते हैं? सुनो सब लोग ध्यान से सुनो. In previous class, how many times I told, in alpha receptors we have alpha 1 and alpha 2, right? We will not discuss about alpha 2 because alpha 2 is located on the nerves, presynaptic nerve, postsynaptic nerve. आपको already बोला है. And I'll discuss about alpha 1, and in hospital we have alpha 1 blockers only. So in alpha 1 receptors are mainly located on 4 different tissues. Number 1, it is located on blood vessels. Are you all listening to me? Are you all listening to me? Alpha 1 receptors are present on blood vessels. Alpha 1 receptors are present on eyes. Alpha 1 receptors are present on GI sphincter, gastrointestinal sphincter, and alpha receptors are also present on urinary sphincter. Urinary sphincter particularly at the site of prostate gland. Prostate में रहता करके I told no, alpha 1 receptors, prostate gland. अब देखो, अब सिंपल सी इसके एक्शंस एंड ऑल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. अल्फा 1 रिसेप्टर अगर ब्लड वेसल के ऊपर एक्टिवेट होगा तो इट विल कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन, ऑन द आईज इट विल कॉज मिड्रियासिस, एंड ऑन जीआई ट्रैक. सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ऑन जीआई ट्रैक, on GI tract, just imagine this is a large intestine. It is a large intestine. In the large intestine we have sphincter, no, sphincter here, anal sphincter मान लो. anal sphincter के साथ साथ अंदर भी बहुत सारे sphincters रहते, which will allow in one direction only. They will allow the movement of gastric contents in one direction only. See, alpha 1 receptors are present on GI sphincters. ये sphincter के ऊपर रहता है alpha 1 receptor. When this receptor is activated, याद रख लो, when these receptors are activated, they will close the sphincters. Activate हुआ तो sphincter close हो जाएगा. But if alpha is blocked, if alpha activity is inhibited, what will happen? Sphincters will be relaxed. That means sphincters will be opened. तो अब अल्फा ब्लॉकर दिए तो स्पिंक्टर्स ओपन हो जाएगा और पेशेंट को डायरिया आएगा नहीं आएगा? यस और नो? अल्फा ब्लॉकर्स दिए तो स्पिंक्टर टोन बोलते हैं और स्पिंक्टर कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं. अल्फा ब्लॉकर्स विल डिक्रीज द स्पिंक्टर टोन एक्टिविटी एंड स्पिंक्टर कंट्रैक्शन एक्टिविटी, एंड they will stop the I mean what we can say, contraction of sphincters. So here what happens, sphincters will be relaxed and opening of the sphincters is performed, and it will eject the gastric contents from the gastric tissue. Simple. That's why alpha blockers may cause diarrhea. This is number 1 drug. Next, there is another drug. Antihypertensive drugs के अंदर we have ACE inhibitors and ARBs. Can anyone tell me why ACE inhibitors and ARBs will cause diarrhea? Do we have any direct action? Anybody from the class? Why ACE inhibitors and ARBs will cause diarrhea? Any direct relation? ACE inhibitors and ARBs will indirectly, they will increase the gastric motility.
एंड दे मे कॉज डायरिया. ऐसा नहीं है कि 100% कॉज करते. रिस्क ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज हाई विथ एस इनिबिटर्स एंड एआरपीस. ओके, ये चीज़ याद रख लो. एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, all antibiotics, all antibiotics or antibacterial agents, all antibiotics and antibacterial agents will cause diarrhea. वो पेनिसिलिन रहने दो, सेफ्लोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, सल्फोनामाइड, सिफोफ्लॉक्सासिन. Okay, all antibiotics or antimicrobial agents will have risk of diarrhea. This is very important point. अगर कोई पेशेंट एंटीबायोटिक ले रहा है तो डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. And one anti-diabetic drug we have in anti-diabetic drug, metformin. And सबसे ज़्यादा, can anyone tell me other than metformin there is one very common drug which will cause diarrhea? Yes, in last class we discussed. metformin के साथ और एक ड्रग है, कौन? Can anyone tell me? metformin के साथ और एक ड्रग है, can anyone tell me? अकारबोज, वोग्लिबोज, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स. कितने बार बोला? अकारबोज एंड वोग्लिबोज विल इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एंड इट विल कॉज डिफिकेशन, इट विल कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, इट विल कॉज डायरिया करके. मेन साइड इफेक्ट वही है अकारबोज का. ओके, समटाइम्स मेटफॉर्मिन आल्सो विल स्टॉप द अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स. सो मेटफॉर्मिन का भी होने के चांसेस है. सो मेटफॉर्मिन एंड अकारबोज is another drug that may cause diarrhea. Important drugs I'm telling. And there are some anti-epileptic drugs, carbamazepine, phenytoin, and क्या बोलते हैं, tiagabine. Okay, all those drugs, anti-epileptic drugs, also may cause diarrhea. And here in all antibiotics I told, not only antibiotics, all antifungals and antivirals. Antifungals, antivirals will also cause diarrhea. And सबसे बहुत ज़्यादा important है डोपामिनर्जिक ड्रग्स. डोपामिनर्जिक ड्रग्स, पार्किंसोनिज्म में अपन डोपामिनर्जिक ड्रग्स देते, लिवोडोपा, वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग. ओके, सो डोपामिनर, हाँ, टॉल्कोपाइन, दोज ड्रग्स, हाँ, दोज ड्रग्स आल्सो विल कॉज डायरिया. ओके, सो दिस आर सम कॉमनली यूज्ड ड्रग्स दैट विल कॉज डायरिया. और यही नहीं, इसके साथ और बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत सारे ड्रग्स. और एक्चुअली देखा गए, एक्चुअली इफ यू सी, ऑल गैस्ट्रिक इरिटेटिंग ड्रग्स और ऑल गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी, जो ड्रग्स गैस्ट्रिक टॉक्सिसिटी करेगा, दैट ड्रग्स, और ऑल एनएसएडीज, और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, एमंग ऑल द ड्रग्स, एवरी ड्रग इज ए टॉक्सिक फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, राइट? हर एक ड्रग जीआई ट्रैक में एक फॉरेन बॉडी ही है. ऑल ड्रग्स आर केमिकल्स, सो ऑल ड्रग्स विल ट्राई टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड दे मे कॉज डायरिया. बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. थोड़े पेशेंट्स बहुत टॉलरेटिंग रहते, थोड़े पेशेंट्स बहुत सेंसिटिव रहते. ओके, सो एक्चुअली मोस्ट ड्रग्स विल कॉज डायरिया, बट वेरी फ्यू ऑफ दिस ड्रग्स आर वेरी कॉमनली सीन विद डायरिया. इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहता, बस ऐसे याद रख लो. क्लियर? नाउ यू सी, we have discussed about the causes, specific causes, bacterial infection, drug causes, and there are some other gastrointestinal disorders, irritable bowel disease, वो भी डायरिया कॉज कर सकते हैं. ओके, अब देखो, अगर किसी भी पेशेंट में डायरिया है, अगर किसी भी पेशेंट में डायरिया है तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? डायरिया पेशेंट, एक्चुअली डायरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिम्टम. डायरिया इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए सिम्टम. अगर किसी भी पेशेंट में डायरिया है, डायरिया की वजह से साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? वेरी गुड, एक्सलेंट पॉइंट, एक्सलेंट पॉइंट. इट विल कॉज डिहाइड्रेशन. वेरी गुड. और डायरिया की वजह से क्या हो सकता है? डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन की वजह से देखो, अगर पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, इफ यू गो विद पेशेंट्स एग्जामिनेशन, पेशेंट को एग्जामिन करे तो क्या होगा? पेशेंट्स आइस पूरे संकन हो जाते. संकन आइस बोलते, संकन आइस, SUNKEN. पेशेंट के जो आई बॉल्स रहते ना, वो अंदर चले जाते. कभी कभी देखो, अपन हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट, यहाँ से वहाँ घूम घूम के, अगर इफ़ यू डोंट टेक प्रॉपर वाटर एंड इफ़ यू डोंट टेक लंच प्रॉपरली, इवनिंग आते आते मिरर में आपके फेस देखो, यू विल सी दिस आई संकन स्टेट. आपके आइस पूरे अंदर चले जाते, काले काले हो जाते, ब्लैक ब्लैक आइस हो जाते, आई बॉल्स पूरे छोटे हो जाते. दैट इज द वेरी कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन डायरिया पेशेंट्स, डिहाइड्रेशन पेशेंट्स. ओके, आई संकन इज वन. And see, when patient is having severe diarrhea or severe dehydration, if we examine the patient's buccal cavity, buccal cavity mucous tissue, buccal cavity mucous membrane is totally dried up. फीवर के टाइम पे यूजुअली अपना फेस, माउथ, बकल कैविटी सूख जाते रहता फीवर में, ज़्यादा फीवर में, बिकॉज इन फीवर पेशेंट विल हैव सीवियर डिहाइड्रेशन.
अगर किसी भी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है एंड इफ यू गो विथ बकल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, if you find that buccal epithelial tissue or mucosal tissue is dried up, that indicates that patient is severely dehydrated. So immediately what we have to do, we have to go with rehydration. अगर अब नॉर्मल पेशेंट्स में इफ यू एग्जामिन दी ओरल कैविटी, more saliva production is seen, wet saliva is seen. Wet saliva is the indication for proper rehydration. But if buccal cavity is dried up, buccal mucosa is dried up, that indicates that patient is dehydrated. ये very very important presentation है. बक्कल कैविटी को देखते ही बोल देना कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है या नहीं. ओके, दिस विल रिप्रेजेंट वेरी इंपॉर्टेंटली. उसके बाद देखो, डिहाइड्रेशन डायरिया की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट विल हैव सीवियर टैकिकार्डिया. वही पेशेंट विल हैव टैकिकार्डिया, वही पेशेंट विल हैव टैकिकार्डिया, वही पेशेंट विल हैव टैकिकार्डिया. डिहाइड्रेशन होगा. Yes, exactly. In dehydration patient's blood pressure decreases. So when blood pressure decreases, heart will try to maintain the blood pressure. That's why heart rate बढ़ जाएगा. Tachycardia is commonly seen. Okay, so this is another. And skin related one थोड़े है. Severely dehydrated patient के skin देखे तो क्या दिखेगा? Severely dehydrated patient के skin कैसा दिखेगा बोलो? हाँ, elasticity लूज हो जाएगा. There is a condition called skin turgor. Skin turgor करके बोलते हैं, TURGER. आई थिंक इसमें कुछ, इसमें आई हैव मेंशनड. देखो, स्किन टर्गर दिख रही है आपको, थोड़ी देर स्क्रीन ऐसा पकड़ के रख दिए तो ये ऐसा हो जाएगा. इफ़ यू कैच दिस स्किन, ओल्डर पॉपुलेशंस में देखे आप कभी भी, इन ओल्ड पॉपुलेशंस में स्किन पकड़ के ऐसा रख दिया तो इट विल स्टे लाइक दिस फॉर सम टाइम. ओके, दिस इज द इंडिकेशन, दिस इज कॉल्ड स्किन टर्गर. सो इन सीवियर डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स, स्किन टर्गर इज वेरी कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. उसके साथ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट विल हैव मलाइज, पेशेंट विल हैव हाइपोटेंशन. हाइपोटेंशन में मेनली पेशेंट विल हैव पॉस्ट्यूरल हाइपोटेंशन. याद रख लो, पॉस्ट्यूरल हाइपोटेंशन. पॉस्ट्यूरल हाइपोटेंशन के बारे में अपन ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस करें. अगर किसी भी पेशेंट में सीवियर नॉसिया, सीवियर डायरिया है, सीवियर डायरिया की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन लेड टू पॉस्ट्यूरल हाइपोटेंशन. पेशेंट सडनली उठ गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और सडनली सिंकोप होकर पेशेंट नीचे गिर जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा. ओके, सो किसी भी पेशेंट को देखो, सीवियर डायरिया है, एक दिन में 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार गैस्ट्रिक मोटिलिटी होते रहेगी, डायरिया होगा पेशेंट को, तो उस पेशेंट में देखो, अगर 10 बार गया ना तो 10th टाइम के बाद पेशेंट को ये पॉस्ट्यूरल हाइपोटेंशन होगा. बिकॉज ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, दैट विल कॉज पॉस्ट्यूरल हाइपोटेंशन. सबसे इंपॉर्टेंट है ये. And if patient is having postural hypotension, that means the patient's dehydration or patient's diarrhea is very severe. इसका मीनिंग क्या है? डायरिया इज वेरी सीवियर. इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट थेरेपी. ओरल थेरेपीज है अपने पास और पेरेंटल थेरेपीज भी है. अबाउट द ट्रीटमेंट वी विल डिस्कस. ओके, एंड अलॉन्ग विद दिस समटाइम्स पेशेंट विल हैव डिजीनेस. पेशेंट विल हैव डिजीनेस. डिजीनेस क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है. एंड फाइनली देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन विथ डिहाइड्रेशन. एपथी. Apathy. Have you heard about apathy? Apathy, sympathy, neuropathy, retinopathy, hepatic encephalopathy, cardiomyopathy. सुने नाम? Neuropathy, nephropathy. Have you heard about all pathies? In this apathy, what is the meaning of apathy? Anybody from the class? A means absent. A means absent. Anybody? Apathy means पेशेंट विल हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग एक्टिविटीज़. अगर खेलने के लिए सब लोग भाग रहे, पेशेंट को डायरिया था, डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन में पेशेंट को एपैथी हो जाएगा, खेलने नहीं जाएगा, क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा और पेशेंट विल नॉट एट ऑल शो इंटरेस्ट इन दी एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़. ओके, सो पेशेंट विल हैव एपैथी. दिस आर सम बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड डायरिया. क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? अब देखो ये ऑलरेडी, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल दिस पॉइंट्स. ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो? संकन आइस. ये संकन आइस. कभी कभी मैं भी, अगर आफ्टरनून इफ आई डोंट हैव लंच, इवनिंग आके मेरी शक्ल में देखेगा ना तो माई आइस विल बी संकन. अरे क्या है जी, ऐसा हो गए आजकल, ऐसा करके मेरे को देख के मेरे को डर लगता. सो इमीडिएटली इन दिस कंडीशंस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिहाइड्रेट द पेशेंट. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट. अब डायरिया पेशेंट में
ट्रीटमेंट देने से पहले we should try to investigate the patient and we should try to find out the exact cause. If exact cause is identified, then it is very easy for us to treat the patient. Okay, in diarrheal patients immediately symptomatic treatment शुरू कर देने के बाद investigation शुरू करते. Okay, in investigations what should be done? First, very very important point, we have to ask the patient's history. हिस्ट्री में वी शुड आस्क, क्या आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आर यू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस करके पूछना. इफ पेशेंट सेज येस आई जस्ट ट्रैवल फ्रॉम मेक्सिको, मेक्सिको से आज ही इंडिया आया है, ऑस्ट्रेलिया से आज ही इंडिया आया हूँ और परसों सिंगापुर में था, उससे उससे पहले दुबई में था, ऐसा बोलते रहता पेशेंट. ओके, सो वी हैव टू आस्क द पेशेंट्स हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री गिव्स वेरी वेरी कॉमन, it gives significant reasons for diarrhea. So we have to take patient's history here, not medication history, we have to take medical history लेना और usual history भी ले सकते हैं. And next one is we have to take patient's medication history. Patient's medication history is also important. Medication history में पूछना, just now we have discussed, are you taking acarbose or are you taking anticholinesterase inhibitors, are you taking organophosphates, are you taking alpha blockers, ये सब पूछना. मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई ड्रग है विच इज कॉजिंग डायरिया, देन इमीडिएटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टॉप दैट मेडिकेशन. दिस इज अनदर इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू गो. एंड नाउ नेक्स्ट वी शुड आस्क द पेशेंट इफ पेशेंट इज अब्यूज्ड विथ एंटीबायोटिक. Antibiotic abuse also causes, also not, it is very important cause. Antibiotic abuse is very important cause for diarrhea. We have to take patient's history, in that patient का antibiotic abuse हो रहा है या नहीं check करना. Okay, in this is very important to identify C. difficile infection. Okay, and अगर ये सब नहीं है, हिस्ट्री नॉर्मल है, मेडिकेशंस नॉर्मल है, एंटीबायोटिक ओवर यूज नहीं है, बट स्टिल पेशेंट डेवलप्ड डायरिया, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो विथ स्टूल एग्जामिनेशन. ओके, वी हैव टू गो विथ स्टूल एग्जामिनेशन और स्टूल कल्चर बोलते हैं यूजुअली. स्टूल कल्चर में अपने को पता चल जाता कि पेशेंट इज इन्फेक्टेड विथ बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और एनी अदर organism or parasites. Okay, so this is very very important and very specific test and very sensitive test. अगर अपने को कॉज पता नहीं चल रहा है तो क्या करना, स्टूल कल्चर को जाना. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ पेशेंट्स डायरिया इज परसिस्टेड मोर देन 10 days, 10 days से ज़्यादा है तो क्या सस्पेक्ट करना अपन, अगर प्रोटोजोल, वेरी गुड, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, तो 10 days से ज़्यादा है तो प्रोटोजोल इन्फेक्शन सस्पेक्ट करना. एंड इमीडिएटली वी हैव टू गो विथ स्टूल कल्चर. वहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा प्रोटोजोआ है वो भी पता चल जाएगा. ओके, एंड सो दिस आर सम इन्वेस्टिगेशंस वी कैन डू. और इसके साथ अब्डोमिनल स्कैन कर सकते, मॉर्फोलॉजिकल एंडोस्कोपी कर सकते, ये सब चीज़ें भी कर सकते, रेडियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते, बट ऑल दैट थिंग्स आर नॉट मैंडेटरी फॉर सिंपल डायरिया. पता नहीं चल रहा है किससे आया, क्रॉनिक डायरिया है, एंड पेशेंट इज फेसिंग मेनी अदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस लाइक ब्लडी डायरिया और इरिटेशन इन दी डिफिकेशन, ये सब मलिना आ रहा है, तो वो कंडीशंस में अपन वी कैन गो विथ रेडियोलॉजिकल टेस्ट. ओके, सो दीज आर डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस वी कैन परफॉर्म. बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस. ये डायग्नोसिस अपना काम नहीं है. वंस पेशेंट इज डायग्नाइज्ड, इट इज़ आवर ड्यूटी टू ट्रीट द पेशेंट. अब देखो, अपने पास बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज वी हैव. सो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज एक बार देखेंगे. फर्स्ट, इन ट्रीटमेंट वी हैव, first strategy is depend on the cause of the diarrhea. अगर पेशेंट का डायरिया इज ड्यू टू व्हाट वी से, ड्यू टू ट्रैवलिंग डायरिया और ड्यू टू ओवर यूज ऑफ ड्रग्स और ड्यू टू एंटीबायोटिक अब्यूज और ड्यू टू वॉट एवर फूड पॉइजनिंग और ड्यू टू लैक ऑफ व्हाट वी से इन प्रॉपर हाइजीन मेंटेनिंग इन दी जीए ट्रैक. अपन देखो जीए ट्रैक में अगर बराबर हाइजीन मेंटेन नहीं करे तो भी डायरिया आ जाता, यू नो. our gastric microflora they will maintain the gastric environment in normal manner. टॉक्सिन्स आ रहे तो टॉक्सिन को निकाल देगा, अगर डायरिया वगैरह कुछ आ रहे, कॉन्स्टिपेशन आ रहे हो तो दैट विल मेंटेन. सो गैस्ट्रिक माइक्रोफ्लोरा विल ट्राई टू मेंटेन दी नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस इन दी जीए ट्रैक. इफ एनी बैक्टीरिया or if any pathological bacteria or if any toxin or if any of the cause, what they do, they will try to disrupt the normal gastrointestinal microflora. What happens when normal flora is destroyed or dysfunctioned or disturbed, patient will develop either constipation or diarrhea. Most probably patient will develop diarrhea.
Okay, so in that what we have to do, we have to try to maintain the normal gut flora. नॉर्मल ग्लट फ्लोरा मेंटेन करने के लिए वी हैव टू टेक योगर्ट और कर्ड और मिल्क और वो गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट बराबर करने के लिए वी विल गो, और अलॉन्ग विद दैट वी आल्सो हैव सम एजेंट्स विच आर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करके वी हैव स्पोरोलैक करके भी टैबलेट्स आर अवेलेबल, ग्रैन्यूल्स में मिलते हैं, टैबलेट्स आर अवेलेबल. दे विल ट्राई टू मेंटेन द प्रॉपर गैस्ट्रिक environment. So based on this specific cause, treatment should be given to the patient. And ये cause पता नहीं है अभी, exact cause क्या है we don't know. Still patient is in investigation. तो patient का rehydration करने के, dehydration कम करने के लिए what we have, we should immediately start with rehydration. If patient's blood pressure is very low, if patient is dehydrated, patient को dehydration है करके कैसा कैसा पता चलता बोलो? Patient को dehydration है, वेरी गुड. ओरल कैविटी एग्जामिन करते हैं, और ओरल कैविटी के अंदर इफ पेशेंट इज हैविंग म्यूकस, ड्राई म्यूकस और ड्राई माउथ और ड्राई टंग, वी कैन आइडेंटिफाई दैट पेशेंट इज हैविंग डिहाइड्रेशन. तो इन रिहाइड्रेशन थेरेपी वी हैव ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड पेरेंटल रिहाइड्रेशन थेरेपी. इफ पेशेंट इज कॉन्शियस एंड कोहेरेंट, पेशेंट कॉन्शियस है, ओरल कैविटी से बराबर ले रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो विथ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज. Simple सी oral rehydration therapy. There is a very famous ORS we have. For a very famous ORS, oral rehydration solution बोलते हैं उसको, oral rehydration solution. And for this oral rehydration solution, WHO has given one formula which is called WHO ORS. WHO ORS सुने नाम आप? WHO ORS अपन सिंपली घर में भी बना सकते, सिंपली अपन घर में भी बना सकते. अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर डायरिया आ रहा है और पेशेंट इज गोइंग टू डिहाइड्रेशन, इमीडिएटली वी कैन सिंथेसाइज WHO ORS सॉल्यूशन एंड वी कैन सजेस्ट टू द पेशेंट. तो देखो WHO ORS कैसा बनाते देखो. तो दिस इज वेरी सिंपल फार्मूला, सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पे. इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड वी हैव टू ऐड 2.6 ग्राम्स. ग्लूकोज पाउडर मिलता है अपने को, अनहाइड्रेस ग्लूकोज पाउडर, 13.5 grams of glucose powder should be added, and potassium chloride salt 1.5 should be added. And this is not mandatory, but ये नया है एक्चुअली. ट्राइसोडियम सिट्रेट करके एक है, दिस इज आल्सो एडेड. सो 2.9 grams ऑफ ट्राइसोडियम सिट्रेट. अगर ये पोटाशियम एंड ये दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन दी, अपने घर में नहीं रहते, तो क्या करना, सिंपल अपन क्या करना, सोडियम क्लोराइड 2.6 grams एंड ग्लूकोज रिक्वायर्ड जितना भी चाहिए वो, और उसके साथ फ्लेवरिंग लेमन. यस, वेरी गुड, लेमन डाल सकते, बिकॉज लेमन कंटेन्स लॉट ऑफ पोटेशियम. लेमन और एनी जूस जो भी है, और क्या बोलते, कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट जूस जो भी है, उसमें पोटेशियम सबसे ज़्यादा रहता, बहुत ज़्यादा रहता. अब मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड अगर सॉल्ट नहीं है घर में, तो क्या करना, फर्स्ट सोडियम क्लोराइड या ग्लूकोज ये सब फटाफट मिक्स करके पेशेंट को दे देना. पोटेशियम के लिए कुछ एक टमाटो खिला देना, या सम फ्रूट्स वी हैव टू सजेस्ट. ओके, या फ्रूट जूस वी हैव टू सजेस्ट. एक टोमेटो खिला दिया तो भी पोटेशियम रिक्वायर्ड 1.5 ग्राम टोमेटो पोटेशियम तो आराम से आ जाएगा. डू यू नो दिस पॉइंट. घर में वेजिटेबल्स रहते ना, अपने घर में वेजिटेबल्स, एक टोमेटो और कच्चे कैरेट, कच्चे वेजिटेबल्स खाने के रहते, देखो वो खिला देना पेशेंट. ओके, तो पोटेशियम बराबर, पोटेशियम जितना भी चाहिए वो आ जाएगा in severe dehydration patients. And see, while giving this kind of oral treatments, we have to make sure that patient's GIT is normal. बहुत सारे पेशेंट्स में डायरिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन, राइट. अब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए डायरिया आ रहा ना. तो अपन ऊपर से सोडियम क्लोराइड खिला रहे, पिला रहे, ORS पिला रहे, सब कर रहे, तो क्या फायदा है, कुछ फायदा है, फिर से वो डायरिया हो जाएगा पेशेंट को, फिर से डायरिया हो जाएगा. सो बिफोर और वाइल गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपीज, WHO ORS जब भी अपन देते, वो देते टाइम पे वी हैव टू मॉनिटर दैट द ORS व्हाट वी आर गिविंग थ्रू ओरल रूट इज बीन अब्जॉर्बिंग फ्रॉम द पेशेंट और नॉट. और वी हैव टू आस्क ORS 1 dose 2 dose 3 dose, एक घंटे में 1 2 3 डोजेस दे देना. एक घंटे के बाद वी हैव टू आस्क द पेशेंट, व्हाट वी हैव टू आस्क, वी हैव टू आस्क वेदर पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग यूरिन और नॉट. वी हैव टू आस्क द पेशेंट वेदर ही इज प्रोड्यूसिंग यूरिन और नॉट. अगर पेशेंट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, अगर पेशेंट यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, पेशेंट्स GIT is working well and the ORS what we have given is absorbed into the bloodstream. Okay, urine production शुरू हो गया तो we have to imagine that patient's GIT is functioning normally and patient's dehydration is slowly
डिक्रीजिंग। समझ रहे हो आप लोग? आप देखो, तो अपने कॉज के हिसाब से पहले स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट देने की कोशिश किए, उसके बाद रिहाइड्रेशन में ओरल देने के किए। ओरल अगर सेट नहीं हुआ, इफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज नॉट मैनेजिंग द पेशेंट, इफ इट इज नॉट कंट्रोलिंग डिहाइड्रेशन, वी हैव टू गो विथ पेरेंटल। पेरेंटल में अपन क्या, वी कैन सजेस्ट नॉर्मल सलाइन 0.9% NaCl solution, और सिंपली डेक्सट्रोज वी कैन गो, बिकॉज सीवियर डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता और कैलोरी कैलोरी भी कम रहता, दैट्स वाई डेक्सट्रोज वी कैन गो, नॉर्मल सलाइन ऑल्सो वी कैन गो। रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं देना, 1 डोज 1 pint और लाइक दैट। अब देखो, रिहाइड्रेशन में दिस इज वेरी सिंपल, ओरल रिहाइड्रेशन देना या पेरेंटल। अगर अनकॉन्शियस है तो पेरेंटल, सिंपली वी हैव टू गो विद पेरेंटल। ये दिस इज इमीडिएट ट्रीटमेंट, दिस इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। यहाँ तक अपन क्या करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिए, और इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन क्या दे सकते हैं, वी रिहाइड्रेट द पेशेंट, वी ट्राई टू रिहाइड्रेट। उसके बाद अगर पेशेंट की डायरिया कम नहीं हो रही, गैस्ट्रिक मोटिलिटी इज नॉट डिक्रीजिंग, वी हैव सम ड्रग्स, we have some drugs which are called anti-motility agents or anti-diarrheal agents. Have you heard about anti-motility anti-diarrheal agents? Anti-motility anti-diarrheal agents में अपने को देखो, लोपेरामाइड करके एक ड्रग है, डाइफिनॉक्सिलेट करके एक ड्रग है। एक्चुअली दिस लोपेरामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट एंड कोडिन, these are opiates, these are opiate drugs, they are opiates. In last class, I think in fourth year I was explaining, opiates will cause constipation करके पढ़े, ओपिएट्स विल कॉज कॉन्स्टिपेशन। तब यहाँ पे डायरिया के पेशेंट में ओपिएट्स दे सकते हैं ना, सिंपल। ओपिएट्स में दूसरे ओपिएट्स नहीं देना है, ये स्पेसिफिकली एफडीए अप्रूव्ड ओपिएट्स, लोप्रामाइड, डाइफिनॉक्सिलेट एंड कोडिन, दीज आर दी एफडीए अप्रूव्ड। फिर दूसरे ओपिएट्स नहीं देना, वो ओपिएट्स दिए तो क्या होगा, डिपेंडेंस आ जाएगा पेशेंट को, टॉलरेंस आ जाएगा पेशेंट को, हैबिचुएट हो जाएगा फिर। ओके, सो लोप्रामाइड इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सजेस्टिव ड्रग विच इज़ यूज्ड एज एंटी डायरियल एजेंट। और लोप्रामाइड 1 डोज, दो डोज, 3 डोज ही देना, 2 mg 4 mg 8 mg लोप्रामाइड टैबलेट्स आर अवेलेबल, कैप्सूल्स आर अवेलेबल। अगर 3 to 4 डोजेस से ज़्यादा दिए, उसके बाद अगर पेशेंट का डायरिया कम नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू स्टॉप लोप्रामाइड एंड वी हैव टू गो विथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एग्जैक्ट कॉज देखना वहाँ पे, एंड बेस्ड ऑन द कॉज वी विल गो विथ आइदर एंटीबायोटिक्स और वी विल गो अकॉर्डिंग टू द कॉज। ओके, एंड बिस्मथ सबसैचुरेट करके और एक ड्रग है, इवन दिस इज आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज एंटी डायरियल एजेंट। एंड उसके बाद प्रोबायोटिक्स, जस्ट नाउ आई वाज एक्सप्लेनिंग, प्रोबायोटिक्स में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करके अपने को आता ऑलरेडी, इज वेरी फेमस। स्पोरोलैक करके एक फेमस ब्रांड है, स्पोरोलैक। सो स्पोरोलैक विल ट्राई टू मेंटेन दी इंटरनल एनवायरनमेंट, गैस्ट्रिक गुड बैक्टीरिया को हाइजीन मेंटेन करेगा। बैड टॉक्सिक बैक्टीरिया और पैथोलॉजिक बैक्टीरिया को उससे फाइट करके ये नॉर्मलाइज करेगा। दिस ऑल्सो इज यूज्ड एज एंटी डायरियल एजेंट। एंड सी, मोस्ट ऑफ द डायरियल पेशेंट्स will have zinc deficiency, and due to zinc deficiency most patients, especially in children, they will develop diarrhea. So diarrheal patients में ओरल ORS के साथ, एंटी डायरियल के साथ, प्रोबायोटिक के साथ एक जिंक टैबलेट भी दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, एफडीए अप्रूव्ड दिस थेरेपी ऑल्सो। जिंक supplements also should be given, which is very effective for diarrhea. And just now I was explaining, अगर किसी भी पेशेंट में रोटा वायरस से के वजह से डायरिया आया तो व्हाट वी हैव टू गो, वी हैव टू गो विथ रोटा वायरस वैक्सीन। एक्चुअली ये रोटा वायरस वैक्सीन इज ऑल्सो वन ट्रीटमेंट दैट कैन बी डन गिवन फॉर डायरिया। एंड इन अदर्स सिम्टोमेटिक थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी, अगर बीपी कम है तो बीपी बढ़ाना, पेशेंट को स्टमक एक है तो डाइसाइक्लोमाइन देना, अगर पेशेंट इज हैविंग अदर साइकोलॉजिकल कंडीशंस वी हैव टू मेंटेन, और पेशेंट एनोरेक्सिया आ रहा तो वी हैव टू मेंटेन दैट। सो डिपेंड ऑन द पेशेंट्स अदर कंडीशंस वी हैव टू गो। पोटेशियम कम हो गया तो पोटेशियम दे दो, हाइपोनाइट्रेमिया हो गया तो सोडियम चढ़ा दो। ओके, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हाइपोग्लाइसीमिया है तो बेस्ड ऑन दैट आइदर गो विथ इंसुलिन और ग्लूकागन, और गो विथ ओरल, एनीवेज ORS में तो वो रहता ही रहता ना ग्लूकोज। ओके, सो दिस आर दी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, इट इज़ वेरी ईजी। इसमें किसी भी पेशेंट में आई विल बी फोकसिंग ऑन क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल इन्फेक्शन। सब लोग ध्यान से सुनो, सब लोग सुन रहे हैं? आर यू आर लिसनिंग एवरीबडी? सुनो, सी डिफिकल इन्फेक्शन करके है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल इन्फेक्शन। क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल इन्फेक्शन किसी पेशेंट में है तो क्या याद आना आपको, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? It is infected due to abuse of antibiotics, overuse of antibiotics, number one. And it is very challenging infection, and it is affecting gastric glands, or in the small intestines and large intestines, and it is causing diarrhea.
And C, सबसे very very important point about C difficile infection is it will cause colon colon inflammation. Colon inflammation. It will cause C difficile bacteria will cause colon inflammation. Colonitis बोल सकते हैं. Okay. So ये if any patient is having diarrhea due to C difficile infection, we have a very effective treatment option is we have vancomycin. वांकोमाइसिन. अब देखो ये वांकोमाइसिन के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है. आप लोग इससे पहले पढ़े कि नहीं कि आई डोंट नो. वांकोमाइसिन is available as IV form and tablet form. Vancomycin is available as IV form and tablet form. If vancomycin is given through tablet form, it will not absorb from GI tract. Let me repeat the point. If vancomycin is given through capsule form में मिलता है actually. If vancomycin is given through oral route, it will not be absorbed from GI tract. Then why vancomycin is used in Clostridium difficile infection through oral route? Anybody from the class? Vancomycin absorption is 0. Vancomycin bioavailability is 0. But still vancomycin is given through oral route in C difficile infection. Why? एग्जैक्टली वेरी गुड. अपने को यहाँ पे देखो वांकोमाइसिन की अब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है. वांकोमाइसिन एक्शन इज रिक्वायर्ड लोकली in the GI tract. That's why vancomycin is used. And mostly vancomycin IV, mostly vancomycin is used in IV only. In other infections, vancomycin is used in IV. But in Clostridium difficile infections, in gastric infections particularly, if any gastric infection is affected with methicillin resistance or multi-drug resistance bacteria, we will go with vancomycin in tablet in capsule form locally action देने के लिए. Clear? Vancomycin is not absorbed from GI tract. Vancomycin is highly polar drug. Vancomycin is highly polar drug. Vancomycin is narrow therapeutic drug. Vancomycin causes nephrotoxicity. Vancomycin causes ototoxicity. Same like aminoglycosides. Clear? Clear everybody? These are important points about vancomycin. अब देखो किसी भी पेशेंट में E. coli बैक्टीरिया है. E. coli बैक्टीरिया. And for E. coli bacteria, what is the common antidiarrheal antibiotic will you give? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो दे दिए. ई कोली बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, सिजेल्ला बैक्टीरिया है. तो वो कंडीशन में एंटीबायोटिक क्या दोगे आप? वेरी गुड. मेट्रोनिडाजोल. सी अपन विदाउट इन्वेस्टिगेशन वी कैन डायरेक्टली गो विथ मेट्रोनिडाजोल. व्हाई? बिकॉज मेट्रोनिडाजोल इज वेरी इफेक्टिव फॉर ई कोली बैक्टीरिया, साल्मोनेला, सिजेल्ला एंड इट इज आल्सो इफेक्टिव फॉर सम प्रोटोजोआ. एंटेरियो हिस्टोलाइटिका वगैरह कुछ प्रोटोजोल इन्फेक्शन है तो उसमें भी बहुत अफेक्टिवली काम करेगा. दैट्स वाई मेट्रोनिडाजोल इज नॉट ओनली किलिंग बैक्टीरिया, मेट्रोनिडाजोल इज अफेक्टिव ऑन प्रोटोजोआ आल्सो. दैट्स वाई मेट्रोनिडाजोल इज ड्रग ऑफ चॉइस. अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन में पता चला ई कोली, साल्मोनेला, शिजेला करके है, तो इन दैट केसेस द अदर ड्रग ऑफ चॉइस व्हाट वी हैव इज वी हैव फ्लोरोक्विनोलोन्स, ciprofloxacin, levofloxacin. Ciprofloxacin is very commonly used. Sometimes nalidixic acid is also used. So fluoroquinolones is other drug of choice. अगर किसी पेशेंट में फ्लोरोक्विनोलोन्स कंट्राइंडिकेशन है तो अल्टरनेटिव ड्रग व्हाट वी हैव सेकंड एंड थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन, पर्टिकुलरली थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन. थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन में टैबलेट फॉर्म्स वी हैव. एक्चुअली वो थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन एंड एंटीबायोटिक्स दे आल्सो फर्दर कॉज डायरिया. वो डायरिया भी कॉज करेगा. बट स्पेसिफिकली वाइल गिविंग दिस ड्रग देयर इज अ ड्रग कॉल्ड सेफिक्साइम करके थर्ड जनरेशन ओरल फॉर्म में टैबलेट मिलेगा. वो देने के बाद डायरिया कम हो रहा है या नहीं, दैट वी हैव टू मॉनिटर. Monitoring is very important with antibacterial or antibiotic therapies. Okay, you have to remember this point also. So these are some antibiotics that are very effective. इसके साथ साथ दूसरे antibiotics भी use करते हैं. First line antibiotic is fluoroquinolones and next metronidazole and sometimes azithromycin and erythromycin also can be effective for gastrointestinal infections. And one more important point, erythromycin gastrointestinal infection के साथ साथ diarrhea भी cause करेगा erythromycin. That's why erythromycin is not commonly suggested in hospitals. Okay, so these are the important points about diarrhea in the hospitals.